Many believe ITR filing is only for the rich or big business owners, but that's a huge misconception. Even if your income is below the taxable limit, ignoring ITR is a major financial mistake. Filing ITR isn't just about paying tax, it's your official financial identity, your report card. It opens doors. Loans, visas, and future opportunities all depend on this record. If you skip it, you risk penalties, notices, and have no proof of your income when needed. So don't see ITR as a burden, see it as your ticket to financial empowerment. So, when is ITR filing mandatory? Under the old regime, if your gross income exceeds Rs 2.5 lakhs, Rs 3 lakhs for seniors, Rs 5 lakhs for super seniors, you must file. In the new regime, the limit is Rs 3 lakhs for everyone. Remember, it's about gross income, before deductions, not taxable income. Many miss this. If your gross is above the limit, you must file, even if deductions bring taxable income to zero. Confusing gross with taxable income leads to non-compliance and trouble. Know your regime, check your gross income, and file if you cross the threshold. Even if your taxable income is zero, there are several situations where you are still required to file an income tax return, or ITR, in India. Many people assume that if they don't owe any tax, they can skip filing, but that's not always the case. For example, if you deposit more than Rs 1 crore in one or more current accounts in a year, spend over Rs 2 lakhs on foreign travel, or own foreign assets, or have signing authority in foreign bank accounts, you must file an ITR, regardless of your income. Similarly, if your TDS or TCS is Rs 25,000 or more in a year, or Rs 50,000 for senior citizens, filing is mandatory. The same applies if your annual electricity bill exceeds Rs 1 lakh, or if you serve as a director in a company, even if the company is not operational. Business owners and professionals should also note, if your business turnover crosses Rs 60 lakhs, or your professional receipts exceed Rs 10 lakhs in a year, you must file an ITR, no matter what your actual profit or loss is. These rules are designed to monitor high-value transactions and financial activities, not just taxable income. The government uses these criteria to ensure transparency and prevent tax evasion. Ignoring these triggers can result in hefty penalties, notices, or even scrutiny from the tax department, which can be stressful and time-consuming to resolve. So, it's important to understand these non-income-based rules and stay compliant, even if you think you don't need to file. Filing your ITR is not just about taxes. It's about being transparent, responsible, and fulfilling your duties as a citizen. अगर आप पर अनिवार्य शर्तें लागू नहीं होती, तब भी ITR फाइल करना समझदारी है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत करने का एक स्मार्ट तरीका है। कई लोग सोचते हैं कि अगर टैक्स नहीं बनता, तो ITR की जरूरत नहीं, लेकिन असल में ये डॉक्यूमेंट आपके लिए कई दरवाजे खोल सकता है। ITR आपकी इनकम का सबसे मजबूत सबूत है। लोन, वीजा या बड़ी फाइनेंशियल डील्स के लिए बैंक और दूतावास इसे मांगते हैं। बिना ITR के कई बार आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि ये आपकी इनकम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भरोसेमंद प्रमाण है। लगातार ITR फाइल करने से आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी बनती है, जिससे आपको बेहतर टर्म्स और जल्दी अप्रूवल मिल सकता है। इससे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आप पर भरोसा होता है और आपकी प्रोफाइल मजबूत बनती है। हाई लिमिट क्रेडिट कार्ड या बीमा पॉलिसी के लिए भी ITR सबसे भरोसेमंद डॉक्यूमेंट है। कई बार कंपनियां सिर्फ उन्हीं को हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स देती हैं जिनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री ट्रांसपेरेंट हो। TDS कटने पर रिफंड क्लेम करने का एकमात्र तरीका ITR है। अपना पैसा वापस पाने के लिए ये जरूरी है। अगर आप ITR नहीं फाइल करते, तो आपका रिफंड फंसा रह सकता है। ITR आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री को साफ और ट्रांसपेरेंट रखता है, जिससे भविष्य में किसी भी जांच से बचाव होता है। ये आपकी ईमानदारी और जिम्मेदारी का भी सबूत है, जो आगे चलकर आपके बहुत काम आ सकता है। देखिए, प्रियया की कहानी। कम इनकम के कारण
आईटीआर नहीं फाइल किया तो स्कूटर लोन रिजेक्ट हो गया। बैंक ने सिर्फ उसकी इनकम नहीं बल्कि उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री भी देखी और आईटीआर न होने से उसे भरोसा नहीं मिला। प्रिया को लगा कि सिर्फ पैसे कमाना काफी है, लेकिन बैंक को आपकी टैक्स फाइलिंग भी दिखानी पड़ती है। अगले साल प्रिया ने आईटीआर फाइल किया और इस बार बैंक ने उसका लोन तुरंत अप्रूव कर दिया। अब उसके पास न सिर्फ स्कूटर है बल्कि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस भी है। आईटीआर ने उसकी लाइफ आसान बना दी। मिस्टर शर्मा रिटायर्ड टीचर जिनकी पेंशन से टीडीएस कटता था। पहले उन्हें लगता था कि रिटायरमेंट के बाद टैक्स फाइलिंग जरूरी नहीं, लेकिन आईटीआर फाइल करके उन्होंने अपना रिफंड पा लिया, जिससे उनकी पेंशन में राहत मिली और फाइनेंशियल प्लानिंग भी बेहतर हुई। राहुल के वीजा एप्लीकेशन में उसके पापा के आईटीआर ने परिवार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी साबित की और वीजा जल्दी मिल गया। कई बार विदेश जाने के लिए सिर्फ सेविंग्स नहीं बल्कि टैक्स डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी होते हैं। सुनीता ने टैक्स बचा लिया पर आईटीआर नहीं फाइल किया। होम लोन के वक्त दिक्कत आई, बैंक ने उसकी इनकम प्रूफ मांगी और आईटीआर न होने से उसका लोन प्रोसेस अटक गया। अमित ने बिजनेस में टर्नओवर दिखाया, आईटीआर नहीं फाइल किया, नोटिस और पेनल्टी झेलनी पड़ी। बिजनेस में पारदर्शिता और टैक्स फाइलिंग न हो तो कानूनी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इन सब से सीखें, आईटीआर फाइल करना सिर्फ कानून नहीं, आपकी फाइनेंशियल सुरक्षा है। ये आपकी क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ और भविष्य की प्लानिंग के लिए भी जरूरी है। एक छोटी सी कार्रवाई जो आगे चलकर बड़ी मुश्किलों से बचाती है, आसान है। आईटीआर फाइल करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित बनाएं।